Welcome to my friends. In this video lecture, we are talking about that chromosome aberration. Okay, before we are jumping about the chromosome aberration, you must know about that what is a chromosome. Okay, the chromosomes, which is a material which contains the genetic information in the packaging form. Okay, which contains proteins as well as the DNA, and we know about the DNA having the various types of base pair codons, and which is very responsible for that gene expression. Okay, so you can see this is a chromosomal structure. Okay, the p arm, q arm, centromere, telomere, this is a basic structure of the chromosomes. But now in this video lecture we are talking about the chromosome aberration. We know about that eukaryotes and having the various types of chromosomes in the cell. But whenever we are talking about the normal male karyotype or normal female karyotype, we are differentiate both the karyotypes with the help of the sex chromosomes. Like this one is a normal phenotype of the male, which suggests like the 46XX, and the human male which contains the XY chromosomes. Okay, and 46XY. But what is the variation? Okay, what is the aberration? Aberration यानी कि क्रोमोसोम के नंबर में, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आने लगते हैं, तो विच इज कॉल्ड द वेरिएशन. एंड द वेरिएशन which is very important phenomena of the causes the mutation as well as which causes the various types of disease also. Okay, so now we are talking about the chromosome aberration. In this video lecture we are chromosome aberration in this numerical chromosomal aberration. Okay, just write it down here. Numerical chromosome aberration यानी कि नंबर के अंदर यहाँ पर चेंज होता है. So you can see that there are two chromosomal aberration which is related to the numerical. Okay, numerical aberration की अगर बात करें तो यहाँ पर दो types होते हैं, euploid as well as aneuploid. Okay, euploid यानी कि the sets of chromosomes which are change. अगर क्रोमोसोम के पूरे सेट में अगर चेंज होता है विच इज कॉल्ड द यूप्लॉइड. अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होता है यानी कि कोई भी क्रोमोसोम के ओनली नंबर में चेंज हो रहा है, वन क्रोमोसोम बाहर जा रहा है या फिर वन क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो विच इज कॉल्ड दैट एन्यूप्लॉइडी. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग इन दिस. देखो यहाँ पर क्या है, डिप्लॉइड के अंदर क्या होगा कि एक ही सेट के क्रोमोसोम्स की दो कॉपीज प्रेजेंट होगी. तो यू कैन सी दैट यहाँ पर 4 क्रोमोसोम है और यहाँ पर भी 4 क्रोमोसोम्स है. ओके, तो 4 क्रोमोसोम्स की दो कॉपीज प्रेजेंट है, सो दैट इट इज कॉल्ड द डिप्लॉइड. ओके, डिप्लॉइड सेल्स. बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रिप्लॉइडी, तो ट्रिप्लॉइडी के अंदर क्या होगा, ट्रिप्लॉइडी के अंदर सभी क्रोमोसोम्स के अंदर, सभी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा, 4 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो गए. ओके, लेकिन अगर तीन ही सेट प्रेजेंट है सेल के अंदर तो दिस इज कॉल्ड द ट्रिप्लॉइडी. ओके, अगर 4 क्रोमोसोम्स की 4 सेट्स प्रेजेंट होते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर मैं बना देती हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर, तो यहाँ पर 4 सेट्स हो गए. ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इसे कहा जाएगा टेट्राप्लॉइडी. ओके, टेट्राप्लॉइडी. और अगर ट्रिप्लॉइडी से बहुत ज्यादा क्रोमोसोम सेल्स के अंदर है तो विच इज कॉल्ड द पॉलीप्लॉइडी. ओके, नाउ यू आर बेटर अंडरस्टैंड इन दिस. So you can see that haploid chromosome cell which contains the single number of chromosomes are present in the cell which is called the haploid. Two copies of the cells, two copies of the number of chromosomes यानी कि दो नंबर के, या सॉरी,
2 कॉपीज के अंदर क्रोमोसोम्स अगर सेल्स के अंदर प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड द डिप्लॉइड. 3 sets of chromosomes are present in that cell which is called the triploid. Tetrachromosomes, okay, यानी कि the 4 copies of the chromosomes are present in the cell which is called the tetraploidy. okay, तो यहाँ पर क्या है, टेट्राप्लॉइडी सभी क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पर ट्रिप्लॉइडी सभी क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट है. तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड दैट यूप्लॉइडी. ओके, यूप्लॉइडी. नाउ टॉकिंग अबाउट द एन्यूप्लॉइडी. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट क्या है. ओके, नॉर्मल क्रोमोसोम का कॉम्प्लीमेंट कैसा है, कुछ इस तरह से. मान लीजिए कि कुछ इस तरह से है, फर्स्ट के अंदर ऐसा है, सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर, फोर्थ के अंदर. ओके, नाउ एन्यूप्लॉइडी जब होती है तब फर्स्ट पार्ट आता है नलीसोमिक. नलीसोमिक यानी कि पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो यहाँ से डिलीट हो जा रहा है. ओके, यहाँ से जो पूरा क्रोमोसोम 4 था, 4 क्रोमोसोम की पूरी पैर यहाँ से क्या हो रहा है, हो जा रही है डिलीट. तो दिस इज अ वेरी डेंजरस, वेरी लिथल कंडीशन. It is called the nullisomic organism, or this is phenomena is called that nullisomy. Okay. Now talking about the monosomic. Monosomic means that here the 4 pair of the chromosomes, only 1 chromosomes are present. 1 chromosome is deleted, so that it is called the 2n-1 monosomic. Okay. ऐसा ही क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 पैर थी क्रोमोसोम की, उसमें से भी एक क्रोमोसोम डिलीट हो रहा है. थर्ड पैर थी क्रोमोसोम्स की, उसमें से भी एक क्रोमोसोम क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है. तो यहाँ पर 2 सेट्स में से एक एक क्रोमोसोम जो है वो क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है. तो दिस इज कॉल्ड दैट डबल मोनोसोमी, और दिस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द डबल मोनोसोमिक ऑर्गेनिज्म. सो दैट इट आइडेंटिफाइड लाइक दैट 2n-1 -1. ओके, सो ऐसा भी आप देख सकते हैं ट्राइजोमिक, टेट्राजोमिक और डबल टेट्राजोमिक, लाइक दिस. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज दैट द क्रोमोसोम लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीन एक्सप्रेशन. ओके, जीन के एक्सप्रेशन से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना ज्यादा बड़ा क्रोमोसोम उतना ज्यादा जीन एक्सप्रेशन. ओके, एज वेल एज जितने नंबर में ज्यादा क्रोमोसोम्स उतने ज्यादा जीन एक्सप्रेशन. यानी कि मान लीजिए कि एक सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम्स है, तो उसके अंदर क्या होगा, जीन एक्सप्रेशन कितना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं. फर्स्ट फिनोमेना की बात कर रहे हैं हम. यहाँ पर एक सेल है जिसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है. एक क्रोमोसोम्स 50% कर रहा है जीन एक्सप्रेशन, 1 क्रोमोसोम 50% जीन एक्सप्रेशन कर रहा है. नाउ द टोटल इज दैट 100%. मान लीजिए कि ये दोनों XX है, तो ये नॉर्मल सेल हो गया, तो जिसके अंदर 100% जीन एक्सप्रेशन हो रहा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट दिस फिनोमेना, this one having the 3 sets of chromosomes. Okay, we know about the simple mathematic calculation. अगर 1 क्रोमोसोम 50% जीन एक्सप्रेस कर रहा है, तो यहाँ पर 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, सो वो कितने कर रहे होंगे, 150% जीन एक्सप्रेशन. ओके, एंड थर्ड फिनोमेना इज लाइक ओनली अगर मान लीजिए कि ये कॉपी थी क्रोमोसोम की, वो डिलीट हो गई, ओनली 1 कॉपी इज रिमेन, so it express only 50% gene expression. Okay, so this both condition is having very variation in gene expression. Okay, मान लीजिए 150 है तो ये ज्यादा जीन एक्सप्रेस करेगा, यानी कि abundant मात्रा में जीन एक्सप्रेशन होगा यहाँ पर, abundant. ओके, और यहाँ पर क्या होगा, लेस मात्रा में, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि 50% तो हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में जीन एक्सप्रेशन होगा. ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी आर discussing out that the numerical aberration. So we are discussing out the aneuploidy and euploidy, but in this video lecture we are
focusing on that most common trisomies also. Okay, first one is that 30 chromosome trisomy, 80 chromosomes trisomy and 21 क्रोमोसोम ट्राइसोमी, यानी कि ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 80, ट्राइसोमी 30. ओके, ट्राइसोमी 30 को कहा जाता है टाउ सिंड्रोम. ओके, टाउ सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि ट्राइसोमी 30 को कुछ इस तरह से एब्रीवेट किया जाता है 47. ओके, टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर? ट्राइसोमी है यानी कि नॉर्मल पर्सन के अंदर क्या होगा 46 क्रोमोसोम्स हो गए, लेकिन यहाँ पर ट्राइसोमी है सो दैट 47 क्रोमोसोम्स हो गए. ओके, एक्स एक्स है यानी कि कोई फीमेल है, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है सोमेटिक 30 नंबर के क्रोमोसोम पर एक कॉपी जो है वो ज्यादा है सो दैट +1. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द टाउ सिंड्रोम. उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितने हैं 1/50,000, यानी कि 50,000 अगर पर्सन्स में से अगर निकाला जाए रेशियो तो ट्राइसोमी 30 कोई एक पर्सन को हो सकती है. ओके, ऐसा इसका कहना है. नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्राइसोमी 80 which is called that adverse syndrome. ओके, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1 जेम 60,000, मीन्स दैट 60,000 में से कोई एक को ये हो सकता है. Now the talking about the trisomy 21 which is called the Down syndrome. Famous है ये trisomy 21. Okay. Now this is a trisomy की बात हो गई ये सब कुछ. अब हमें एक क्वेश्चन होता है कि Down syndrome which is also trisomy, Klinefelter syndrome also trisomy. Okay, यानी कि Klein syndrome में क्या होता है XXY होता है, XXY. ओके, और डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है XXX. यानी कि डाउन सिंड्रोम जो है वो कहाँ पर हो रहा है? ऑटोसोमल डिसीज है, ऑटोसोमल डिसीज. ओके, ऑटोसोमल. यहाँ पर मैं लिख नहीं सकते, आप देख लेना, यहाँ पर जस्ट राइट इट डाउन, ऑटोसोमल. ओके, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो क्या है? सेक्स क्रोमोसोमल रिलेटेड है. ओके, सो ऐसा क्यों हो रहा है कि डाउन सिंड्रोम कोजेस मोर फिनोटिपिक इफेक्ट्स एज कंपेयर टू द क्लाइनफेल्टर. अगर हम डाउन सिंड्रोम के बच्चे देखें ना तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फिनोटिपिक इफेक्ट्स हमें दिखने को मिलेगी, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर जो भी पर्सन होता है उसके अंदर इतनी ज़्यादा फिनोटिपिक इफेक्ट्स नहीं दिखने को मिल रही. तो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट X chromosome inactivation. Okay, you can see that the Klinefelter syndrome karyotype XXY है यहाँ पर. तो क्या हो रहा है, नॉर्मल मेल के अंदर कोई भी बार बॉडी प्रेजेंट नहीं होती है. ओके, क्योंकि एक क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम ऑलवेज रहेगा प्रेजेंट फॉर दैट जीन एक्सप्रेशन. ओके, लेकिन फीमेल के अंदर क्या होता है, 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो एक को डोजेस कंपेंसेशन के लिए बार बॉडी में कन्वर्ट किया जाता है इन द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर. ओके, सो यू कैन सी दैट फीमेल के अंदर यहाँ पर आपको बार बॉडी दिखेगी, मेल के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है. ओके, लेकिन जबकि हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो उसके अंदर बार बॉडी प्रेजेंट होगी, बिकॉज उसका जो क्रोमोसोम है एक 1 एक्स्ट्रा आ गया है, एक्स क्रोमोसोम. सो यहाँ पर एक बार बॉडी दिखेगी, किसके अंदर? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर. आपको इजी हो जाए इसलिए मैंने एक चार्ट भी रखा है यहाँ पर. सो नॉर्मल फीमेल के अंदर क्या है, 46 क्रोमोसोम है, बार बॉडी 1 है, जिसको हम एब्रीवेट करेंगे 46XX से.
ओके, नॉर्मल मेल 46 क्रोमोसोम, बार बॉडी प्रेजेंट नहीं होती है 46XY. Klinefelter syndrome, which is having the 47 chromosomes, bar body present in the male, the 47XXY. Okay, and the Turner syndrome having the chromosomes 45, the bar body number is 0. यहाँ पर bar body नहीं होती क्योंकि X 0 होता है. As well as सुपर फीमेल की बात करें तो जिसके अंदर नॉर्मल फीमेल में एक ही बार बॉडी प्रेजेंट होगी, लेकिन सुपर फीमेल के अंदर आप देख सकते हैं क्रोमोसोम्स की जो नंबरिंग है वो बढ़ जाने के कारण यहाँ पर 2 बार बॉडी दिखेगी, ओके, इंस्टेड ऑफ 1. एज वेल एज द सुपर मेल which contains the 47 chromosome number, okay, and XYY. This is also called as a Jacob syndrome. ऐसा क्यों होता है डाउन सिंड्रोम के अंदर, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर कि एक कॉपीज ज़्यादा चली जाती है, ओके, यानी कि सेल के अंदर क्या होता है कि जब मियोसिस होता है ना, तब क्या हो जाता है कि क्रोमोसोम्स को सेपरेट होना होता है, लेकिन अगर क्रोमोसोम सेपरेट ना हो पाए और पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एक ही सेल के अंदर चला जाता है, तो विच इज कॉल्ड दैट नॉन डिसजंक्शन फिनोमेना. ओके, तो जिसकी हम बात नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे. आई होप यू आर क्लियर अबाउट दैट द न्यूमेरिकल एब्रीवेशन, न्यूमेरिकल एब्रेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. If you like this video, please like button and please share this video in your friends and subscribe my channel. Thank you.